Yes, guys. So, MS Dhoni, Mahendra Singh Dhoni, and his life lessons are what we are gonna do today. So, this is my favorite post with the same T-shirt that I'm sharing with Mahendra Singh Dhoni. Yes, our uh, most loved Indian cricket team captain. एंड बहुत सारे दिलों में रहने वाले एंड बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट पर्सन. So guys, Mahendra Singh Dhoni has been looked upon always. Yes, कितने लोग इनकी ऑलमोस्ट पूजा करते हैं, कितने लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं. नॉट बिकॉज ओनली ही वॉज द कैप्टन, but because the way he has lived his life, the way he has taken care of the Indian cricket team, and the way he and his own self belief about a lot of things. तो आज मैं आपको 10 लाइफ लेसन्स बताऊंगी इनके लाइफ के बारे में. यस, इनके लाइफ से जो हमें सीखने हैं और इनकी इनकी जो पर्सनल बिलीव्स है उनसे. यस, जो आप अभी नॉट इनके एज में आने के बाद ही, बट जो जिस जिस लेसन से आप अभी से अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्म तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं एंड हर जगह पर कैसे इनके सारे टीचिंग्स हमें काम आएंगी. Yes, so guys, this video is gonna be very interesting. I would love it if you all quickly hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to share this video with all your friends so that they also know that yes, you are a part of this amazing channel, Unacademy Champions, and your favorite educator Diksha Bhuvalka always comes up with such videos for all of you. Right? So my name is Diksha Bhuvalka, guys. I'm your educator at Unacademy. I have been a teacher since last 12 years and I'm a teacher at Unacademy since last 2 years. This is my code DV13 which helps you to unlock free classes on Unacademy and get big discounts on our Plus and Iconic versions. Right? If you have not yet followed my profile, quickly go and follow my profile. The link you will be finding in the description box. And if you want to get connected with me personally in order to get all the updates of my classes, you will have to join my Telegram channel Diksha_DV13. Yes, so quickly hit the like button, subscribe to the channel. Don't forget to hit that bell icon so that you don't miss out any of my videos. So are you ready, guys? I'm going to start with those amazing life lessons. So let's start with number 1. Number 1 is the eye of the storm. Now what do we mean by that? आपको पता है गाइज, जो स्टॉर्म होता है, साइक्लोन होता है, उसके जो बीच का पार्ट होता है, द आई होता है, वो बहुत काम होता है. यस, आज इतना बड़ा साइक्लोन आता है. यू हैव हर्ड अबाउट साइक्लोन्स लाइक साइक्लोन टॉटे, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन फानी. यस, लेकिन जो उसका बीच का आई वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत काम होता है. वही चीज़ धोनी हमें सिखाते हैं. यस, धोनी ने आज इतने सारे आज तक मैचेस खेले हैं. यस, आज आप आईसीसी का वर्ल्ड कप जो हुआ, सेमी वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, ये जितने भी मैचेस होते हैं वो सब बहुत ही बड़े वाले मैचेस होते हैं. तो आज उसमें कोई भी पैनिक कर सकता है, क्योंकि अगर उस मैच में हार गए तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. आज इंडिया इतने टाइम से प्रैक्टिस करती है, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट फॉर एवरीथिंग. सो आज अगर हम धोनी की बात करें तो आज वो इतने टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, अपनी टीम को संभालते हैं. तो जब बड़े मैचेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. द होल कंट्री हैज़ सो मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्रिकेटर्स. तो वैसे ही अगर आप इसी चीज़ को अपने पढ़ाई के साथ जोड़ें तो आज आपका बड़ा जो फाइनल एग्ज़ाम्स होता है, या फिर आपने कोई ओलंपियाड में पार्ट लिया है, कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम में पार्ट लिया है, तो इन दैट केस वो भी आपके लिए एक स्टॉर्म जितना बड़ा है. तो द बिग मैच एटीट्यूड, द बड़े वाली एग्ज़ाम्स जो होते हैं, आपके लिए एग्ज़ाम वाला होगा, तो बिग एग्ज़ाम और बिग मैच का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही काम होना चाहिए. यस, धोनी हमेशा ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मैं अपने आप को काम रखता हूँ. Yes, so you have to have a calm attitude towards any kind of matches, towards any kind of exams, and that is what we will learn from our amazing captain MS Dhoni. So he says a cyclone derives its power from the calm center and so does a person. जितना साइक्लोन एक्चुअली जितना भयानक होता है ना, सारी शक्ति उसके बीच के आई में होती है, जो कुछ ऐसा होता है. ऐसा साइक्लोन इस तरीके का होता है, जो बीच का आई होता है खुद तो बहुत काम होता है लेकिन साइक्लोन को बहुत ही भयानक बनाता है. तो वैसे ही एक पर्सन आज उसके आसपास चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, बट अंदर में इफ ही इज काम एंड कंपोज एंड ही हैव्स दैट कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, यस, ही डज नॉट पैनिक, ही विल डेफिनेटली क्रैक इट. राइट? सो गाइज, सेकेंड ही सेज कि इंस्टिंक्ट, इफ दैट इज द रेसिपी फॉर सक्सेस. अब क्या होता है कि अगर धोनी का कोई भी प्रीवियस मैचेस देखें और उनकी टीम स्ट्रैटेजीज देखें तो उन्होंने न्यू प्लेयर्स पे काफ़ी ट्रस्ट किया है. यस, तो जैसे कि एक बार एक मैच हुआ था जिनमें लास्ट ओवर्स में उनको मैच जीतना था. यस, एवरीवन वाज थिंकिंग कि वो कुछ सी बड़े प्लेयर को भेजेंगे, बट उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही न्यू कमर वाले प्लेयर को भेजा जिसने हमारी टीम को जिता दिया.
यस तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उनके खुद के इंस्टिंक्ट ने काम किया। इंस्टिंक्ट मतलब आपकी एक अंदर की आवाज़ जो आपको बताती है कि नहीं बेटा ये करो। यस एंड रिमेंबर गाइस, वो जो आपकी खुद की आवाज़, वो दिल की आवाज़, वो अंदर की आवाज़ होती है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, दैट इज़ कॉल्ड द गट फीलिंग, कि मतलब अंदर से ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। यस एंड ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, राइट? So always trust your gut guys. Your brain can be fooled and your heart is an idiot, but your gut doesn't know how to lie, क्योंकि gut खाना खा के बनता है, yes, और बहुत ही दिमाग से सोचता है. So Dhoni always relies on his gut, and that is what makes him a great leader, right? So if you also want to imbibe that guys, हमेशा अपने instincts को trust करो जब आप कोई भी चीज़ में फंस जाते हैं. थर्ड, रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम प्लान. आज कोई भी चीज़, आप दुनिया में किसी भी चीज़ को देखिए, हर चीज़ में होता है रिस्क. आज क्रिकेट में हो गया, कोई गेम्स में हो गया, बिजनेसेस में हो गया, कंपनीज में हो गया, रिस्क कहाँ नहीं है. यस रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो आप प्रॉफिट कमाएंगे. जब आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे या इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज के शेयर होल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जो जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उसको. यस बट फिर रिस्क किस बात का, क्योंकि उतना ही ज़्यादा लॉसेस भी मिल सकता है. सो दैट इज़ द रिस्क दैट यू हैव टू टेक. अभी धोनी के साथ क्या हुआ था कि व्हेन धोनी वाज इंक्लूडेड इन द क्रिकेट टीम अर्लियर, पहले की बात बता रही हूँ, तो उन्होंने काफ़ी बड़े प्लेयर्स को रिप्लेस किया. यस अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस बात पे नाराज़ हो गए कि ये कल का नया आया हुआ बच्चा ये क्या करेगा. यस बट धोनी को लेना अगर एसोसिएशन वालों की रिस्क थी, बट उसमें क्या हुआ, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बिकॉज धोनी हैज़ उसके बाद कितने मैचेस धोनी ने हम सबको जिताए हैं. यस इंडिया को कितने सारे मैचेस जिताए और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया है, राइट? सो रिस्क हमेशा पार्ट होता है गेम प्लान में, कि अगर आप रिस्क को कैसे समझ सकते हैं या रिस्क को किस तरीके से आप अपने आप से करवा सकते हैं. यस सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि सक्सेस हो फेलियर हो, उस दोनों को एक जैसे समझना है. यस अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो भी ठीक है, अगर लॉस होगा तो भी ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार होना है, तो आप ले सकते हैं एक बड़ा सा रिस्क. यस तो एक बहुत ही प्यारी उर्दू की शायरी है, वो मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी. मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. यस इसका मतलब मंजिल तो उसको तो मिल ही जाएगी जो इधर से उधर भटक रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर टेकिंग अ रिस्क, मे बी कैलकुलेटेड रिस्क, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से रिस्क ले लीजिए, आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लीजिए. इफ़ यू आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क देन डेफिनेटली आपको मंजिल तो मिल जाएगी. मंजिल मीन्स डेस्टिनेशन. बट एक्चुअली वो लोग जो कभी घर से ही नहीं निकले ये सोच के कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, आई कैन नॉट टेक रिस्क, वो तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं. एटलीस्ट जो निकला है उसको मिलने का चांस तो है, लेकिन जो घर से निकला ही नहीं वो तो कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा. इसका मतलब गुमराह एज इन दे आर एब्सोल्युटली नोवेयर हु हैव नॉट येट कम आउट फ्रॉम देयर होम. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल उर्दू लाइन फ्रॉम मिर्ज़ा गालिब. नेक्स्ट, डोंट फॉलो द बुक ब्लाइंडली. सो बेसिकली धोनी हमेशा ये बताते हैं कि वो कभी भी खुद एक टेक्स्ट बुक प्लेयर की तरह उन्होंने गेम नहीं खेला है. तो जब भी धोनी का ऑडिशन मैच होता था तो धोनी अपना एक हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे. तो बहुत सारे लोग ना उसको देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाते थे कि अरे इसका तो अलग ही टेक्निक है. आज कोई भी जब ट्रेनिंग लेता है, क्रिकेट की ट्रेनिंग लेता है या कोई अदर गेम की ट्रेनिंग लेता है, कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग लेता है, तो सबको पता होता है कि ये इस तरीके से फॉलो करना है. लेकिन सबका अपना अपना एक यूनिक तरीका भी होता है कोई भी चीज़ करने का. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, उसको जाने के लाखों तरीके हो सकते हैं, 100 तरीके, मतलब हज़ारों और लाखों कितने भी तरीके हो सकते हैं. सबका अपना तरीका होता है जो आपको बाकी लोगों से यूनिक बनाता है. सो डू नॉट गो बिहाइंड द क्राउड, ट्राई टू मेक योर ओन आइडेंटिटी एंड डू नॉट फॉलो जो भी आपको बस पढ़ाया जा रहा है, बस उसी को फॉलो नहीं करना है. वो करने के साथ साथ अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बनानी है. एज धोनी सेज, ग्रेटनेस अवेट्स ऑल बियॉन्ड बैरियर्स. आपको जो एक बैरियर में रखा गया है या उसी के अंदर आपको अपना सोच रखना, ऐसा नहीं है. यू ओपन योर थॉट, यू मेक योर इमेजिनेशन वाइड. यस try to imagine, try to make yourself creative, try to make yourself innovative and make yourself a great person like that. yes जैसे कि प्रिंसेस डायना, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कोट बोला था, I don't go by the rule book, I lead from the heart, not the head.
Yes, this is also a beautiful quote by Princess Diana who says कि मैं जो भी रूल बुक है मैं वो उसको फॉलो नहीं करती, मेरे मन में मेरा दिल जो बोलता है मैं उसको करती हूँ। या रूल बुक के बात ऐसी है गाइस कि जो एग्जैक्टली आपको जितना सिखाया जा रहा है अगर आप अपने दिमाग को उतना रखेंगे यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ रोबोट, अ मशीन। बट वी पीपल आर नॉट मशीन्स एंड रोबोट्स, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी, isn't it? So do not go behind the crowd, make your own identity, make yourself unique so that you stand out from the crowd. नेक्स्ट, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। कभी भी जब आपको एक रोड ब्लॉक आ जाता है कि ये करें या नहीं करें, उसके लिए कोई चीज़ छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप कर लेंगे, जस्ट गो फॉर इट। ये चीज़ किया था धोनी ने। आपने देखा होगा कि जब धोनी पहले क्रिकेट ज्वाइन करने से पहले धोनी यूज्ड टू वर्क एज अ टिकट कलेक्टर, टीसी थे। यस, तो उन्होंने अपनी एक बहुत ही स्टेबल जॉब, गवर्नमेंट वाली जॉब उन्होंने छोड़ दी थी जब उनको क्रिकेट ज्वाइन करना था। इस बात पे उनके पिताजी बड़े नाराज़ थे। अगर आपने मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी ये चीज़ दिखाता है कि उनके पिताजी बड़े नाराज़ थे। बट धोनी ने उस दिन डिसाइड कर लिया था। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट सीन वेयर ही वाज सिटिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एंड वो डिसाइड कर रहे थे कि ये ट्रेन ले या ये ट्रेन ना ले। यस, क्योंकि उनका मन पूरी तरीके से क्रिकेट पर था, उनको अपने ऊपर, अपने क्रिकेट के ऊपर, अपने टेक्निक्स के ऊपर पूरा फेथ था। एंड फाइनली ही टुक दैट लीप ऑफ फेथ एंड सी वेयर ही इज। यस, टुडे ही इज इन द हार्ट्स ऑफ millions of people all over the world, right? So take that leap of faith because as per Ray Bradbury, jump and you will find out how to unfold your wings as you fall. इसका मतलब आप जब तक वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे नहीं तब तक आपको उड़ना भी नहीं आएगा। आज पहली बार एक कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनता है उसको नहीं पता कि उसके पास विंग्स है। जब वो पहली बार उड़ने के लिए अपने आप को छोड़ देता है तब उसके विंग्स अपने आप खुल जाते हैं और वो उड़ने लगता है, राइट? सो यू हैव टू ऑल्सो फ्लाई एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट गाइज। करेंटली अभी मेरा एक नया बैच आ रहा है विच इज़ कॉल्ड उड़ान बैच, तो आप उसके साथ एक उड़ान भर सकते हैं टुवर्ड्स योर ड्रीम मार्क्स, राइट? सो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल पर। प्लीज़ गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कम एंड जॉइन माई बैच विच विल टेक यू टुवर्ड्स दोज ड्रीम मार्क्स एंड बिकमिंग अ टॉपर। लेट्स मूव अहेड। प्रोसेस नंबर 6। यस, प्रोसेस का मतलब आजकल के बच्चे का ऐसा है ना कि पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं है। दे आर ऑलवेज लाइक मार्क्स चाहिए, फर्स्ट आना है, इतना परसेंट लाना है, वो बनना है, वो बनना है। दे आर हैविंग देयर आईज ऑन द डेस्टिनेशन कि फाइनली क्या चाहिए उनको, अभी क्या करना है, किस तरीके से करना है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप के ऊपर फोकस कम है, इसीलिए बहुत जगह फेल हो जाते हैं। वही चीज़ धोनी बोलते हैं कि आई डोंट थिंक अबाउट कि मुझे ये जीतना है, मुझे हर एक ओवर अच्छा करना है। आई हैव टू प्ले वेरी गुड एट एवरी ओवर। अगर हर ओवर मेरा अच्छा चला गया तो डेफिनेटली मेरा मैच अच्छा ही होगा। सो द प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिजल्ट्स। इफ़ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस, अगर आप हर दिन अपना प्रोसेस अच्छा कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट हैज़ टू बी गुड। Yes, so youngsters are so result oriented nowadays that we actually forget about the process. These are own quoted by MS Dhoni. Process is more important than the results. आजकल क्या है कि आप हर दिन का असाइनमेंट, हर दिन का होमवर्क, हर दिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको फोकस करके पढ़ेंगे, मेक श्योर एवरी डे ऑफ योर्स इज गोइंग एब्सोल्युटली एज पर जो होना चाहिए, तो रिजल्ट भी वही आएगा ना। अगर आप ABCD करके हर दिन एक स्टेप लेते हो तो आप Z तक पहुँचेंगे। अगर आप डे 1 पे ही सोचेंगे मुझे Z तक पहुँचना है, बीच का सब खराब हो जाएगा और Z तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट एंड नॉट ऑन द ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, ईच एंड एवरी स्टेप रादर दैन द रिजल्ट। प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। 7, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ये MS धोनी हमेशा फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी टीम जीतती है ना तो अपने यंगेस्ट प्लेयर को ट्रॉफी पकड़ा देते हैं, या फिर अगर उनके कोई यंगेस्ट प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो हमेशा सब कुछ छोड़ के उसको शाबाशी ज़रूर देते हैं। तो दिस शोज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। Yes, Dhoni has always been a very good leader. He's always been there for his own team. वैसे ही अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर भी एक टीम में काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दोज लीडरशिप क्वालिटीज़। वो उसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अपनी जिम्मेदारी पे जब आप कोई चीज़ करते हैं और करवाते हैं, यू बिकम अ गुड लीडर। ऑल्सो यू हैव टू बी देयर फॉर योर टीम, और आपकी टीम आपके साथ है, आपके पीछे नहीं। आई हैव टू कीप योर टीम टुगेदर विथ यू। ऑल्सो गाइज, अपनी टीम को हमेशा अप्रिसिएशन देना
बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट धोनी हैज़ ऑलवेज डन, ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिज टीम फॉर हिज गुड वर्क, एंड डेफिनेटली द टीम इज़ ऑलवेज देयर. As he says, for me, it is important to build good partnerships rather than score centuries. Once you have those partnerships, you will also get centuries. अगर आपने अपनी टीम को अपने साथ बहुत अच्छा कर लिया तो आपकी टीम मिलके आपको उस जगह तक पहुंचाएगी. सपोज आपने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया है जहाँ पर आपको टीम वर्क करना है. अगर आपकी टीम में ही आपस में झगड़े हो रहे हैं तो कंपटीशन भी आप जीत नहीं पाएंगे. बट अगर आपने अपनी टीम का मन जीत लिया तो आपकी टीम मिलके आपको वो कंपटीशन ज़रूर जिताएगी. दिस इज़ व्हाट MS धोनी बिलीव्स. Number 8, embrace both your success and failures. This has to be done, guys. अब MS धोनी का अगर लाइफ देखें तो क्रिकेट खेलते हैं. अब मैचेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, होंगे ही. हर मैच कोई नहीं जीतेगा और हर मैच कोई नहीं हारेगा. तो सक्सेस और फेलियर हमेशा उसको एक लाइट में देखना है. यस, जीत गए तो बहुत खुश और हार गए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से क्या ट्राई करेंगे. ये एक बार हुआ था कि अंडर 19 जब धोनी खेलते थे तो उन्होंने बहुत मेहनत भी करी और उन्होंने बहुत सारे सेंचुरीज़ भी बनाए, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आई तो उनका नाम नहीं आया. यस, सोचो इतनी मेहनत के बाद तो आज कोई का भी दिल टूट जाएगा. बट उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उनको पार्टी दी. यस, तो दे वर लाइक, क्या पार्टी फॉर व्हाट, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अरे सिलेक्शन हो जाए तो भी पार्टी करेंगे, नहीं हुआ तो भी करेंगे, क्योंकि क्या दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल होगा. फेलियर से ही आप पहुँचेंगे सक्सेस के ऊपर. तो फेलियर्स आर ऑलवेज डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट. तो whoever is successful these days, yes, आप किसी को भी देखेंगे कि यस ये तो बहुत सक्सेसफुल है, तो रिमेंबर दे हैव ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स. नेक्स्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज MS धोनी अपने वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट द वन हु इज़ ओनली डूइंग क्रिकेट. ही हैज़ हिज ओन पर्सनल लाइफ, ही हैज़ हिज ओन फैमिली, एंड ही डजंट लाइक डिस्कसिंग क्रिकेट ऑफ द फील्ड. यस, एंड जब वर्क लाइफ के साथ साथ वो और क्या करते हैं, उनको सबको पता है कि वो उनका बाइक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है. सो ही डेफिनेटली गिव्स टाइम टू हिज बाइक. ही इज़ अ स्काई डाइवर. उनके पास डॉग्स हैं, उनको जर्मन शेपर्ड का भी बहुत शौक है. तो ही इज़ अ कंप्लीट बैलेंस मेकर इन द वर्क लाइफ. तो वैसे ही आपके साथ भी गाइज, एज अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू इज़, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, you also have to be good in extra curricular activities and also take up hobbies. hobbies का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास कुछ हॉबीज़ है जैसे कि गिटार बजाना, डांस करना, सिंगिंग करना, listening to music, anything which you are passionate about, definitely have that hobby alongside your careers and studies. Finally, it's not over till it's over. जब तक लास्ट शॉट नहीं बाकी है तब तक गेम ख़त्म नहीं हुआ है. आपने देखा है कितनी बार MS धोनी ने लास्ट ओवर्स में हमारी टीम को जिताया है. यस, तो ये चीज़ MS धोनी हमेशा हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं कि जब तक फाइनल आपने नहीं अपना शॉट खेल लिया है तब तक हारना नहीं, क्योंकि लास्ट शॉट में ज़िंदगी बदल सकती है. वो एक डिसीजन, वो एक पेपर, वो एक मार्क्स, वो एक लास्ट ट्राई, एंड यू विल हैव समथिंग एल्स ऑन योर प्लेट. यस, till the full stop does not come, the sentence does not complete. वो full stop का wait करने तक you give it your best shot. Yes, so these are the amazing 10 different life lessons, guys. I want all of you to definitely give a like on the video if you like this, and do let me know in the comment section what more would you like me to bring, and I will definitely bring a lot of teachings, sayings, and experiences from the life of very very successful people next upcoming in this channel. So quickly make sure that all of you are subscribing to the channel if you don't wish to stop your learnings from this amazing channel. So guys, I am doing also a lot of special classes on Unacademy. Those are free classes. You can unlock for them, unlock and enroll with them with the code DB13. And these are my batches that are उड़ान बैचेस. एज आई टोल्ड यू कि आप इसमें एनरोल करके उड़ सकते हैं और अपने ड्रीम मार्क्स को पा सकते हैं. These are available for classes 6, 7 and 8, and we also have Olympiad batches with us. So कुछ भी करेंगे Unacademy पर याद रखना DB13 कोड ज़रूर लगाना. Yes, definitely I'll meet you once again. Thank you so much Unacademy. Let's crack it.